Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your SST teacher. Today we continue our chapter 15, part 2 from question 7, that is one word. First one word is who started the Quit India movement on 8 अगस्त 1942. जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, 8 अगस्त 1942 को किसने स्टार्ट किया था? सो आंसर इज महात्मा गांधी. किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने. सेकेंड नंबर इज व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस इन अमृतसर. जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कौन सी डेट को हुआ था? अब इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919 को. On 13 April 1919, Jallianwala Bagh massacre took place in Amritsar. Now, third number is who was the president of Rowlatt Committee? Who was the president? Sir Sidney Rowlatt. Sir Sidney Rowlatt was the president of Rowlatt Committee. Fourth one word is who addresses the nation from Red Fort on Independence Day. इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट से जो अपनी कंट्री को कौन एड्रेसेस करते हैं? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे. Question number 5 is what is the other name of Indian National Army? Indian National Army का दूसरा नाम क्या है? What is the other name of Indian National Army? So answer is Azad Hind Fauj. Azad Hind Fauj is the other name of Indian National Army. Here one word is completed. Question number 8 is name them. First name them is a person who fights to bring about great changes. एक person जो बहुत सारे जो changes लाने के लिए कंटिन्यू फाइट करता है इंडिपेंडेंस के लिए, उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशनरी. रेवोल्यूशनरी मीन टू से क्रांतिकारी. आंसर इज रेवोल्यूशनरी. सेकेंड नंबर इज रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर. कौन से ईयर में पास हुआ था रॉलेट एक्ट बाय द ब्रिटिश? इन 1919. ईयर 1919. In year 1919, Rowlatt Act was passed by the British. Third number name them is a method of protest based on truth and non-violence. ऐसा विद्रोह या विरोध जो ट्रुथ, सच्चाई और अहिंसा पर बेस्ड था बाय द महात्मा गांधी. कौन सा मेथड था? इट्स सत्याग्रह. आंसर इज सत्याग्रह. Fourth number is a form of political protest when shops are closed. ऐसा कौन सा political protest विरोध होता है जिसमें shops closed होती हैं and people refuse to work? is हड़ताल. हड़ताल is a form of political protest when shops are closed. Fifth number is Azad Hind Fauj organized by Indian National Army. Azad Hind Fauj organized by Subhash Chandra Bose. Question number 9 is name the following. First name the following is name any 4 freedom fighters. 4 freedom fighters के नेम बता रहे हैं. One number is Chandrasekhar Azad. Second is Bhagat Singh. Third one is Rajguru and fourth is B.K. Dutt. 4 freedom fighters are Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Rajguru and B.K. Dutt. Question number 2, name the following is 2 nations were created by the Indian Independence Act. जब Indian Independence Act हुआ था 2 nations were created. 2 nations बने थे, 2 राष्ट्र बने थे. कौन कौन से बने थे? आंसर इज इंडिया एंड पाकिस्तान. India and Pakistan were the 2 nations created by Indian Independence Act. Now, last question is answer the following questions. One number is what is सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या है? Mahatma Gandhi proposed satyagraha
a method of protest based on truth and non-violence. महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा था, अ मेथड जो किस पे जो मेथड था प्रोटेस्ट बेस्ड, जो किस पे बेस्ड था, जो एक तरह का विरोध था, विद्रोह था, किस पे बेस्ड था, सच्चाई और अहिंसा पे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. ही बिलीव ही जो महात्मा गांधी के लिए यूज हुआ है, ही बिलीव दैट अ सत्याग्रही शुड ऑलवेज बी ट्रूथफुल एंड पीसफुल. गांधी जी के अकॉर्डिंग गांधी जी बिलीव करते थे दैट अ सत्याग्रही, जो सत्याग्रही होता है, शुड ऑलवेज बी ट्रूथफुल, हमेशा वो सच्चा रहता है, एंड शांत होता है, पीसफुल, ऑलवेज बी ट्रूथफुल एंड पीसफुल, एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट व्हाट वाज अनजस्ट एंड अनफेयर. महात्मा गांधी बिलीव करते थे दैट जो सत्याग्रही होता है, ऑलवेज बी ट्रूथफुल, वो हमेशा सच्चा और शांत होता है, एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, और कुछ भी अनजस्ट हो रहा होता है, अनफेयर हो रहा होता है, वो उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज मतलब मना करता है. आई रिपीट इट अगेन. महात्मा गांधी प्रपोज सत्याग्रह, a method of protest based on truth and non-violence. He believed that a satyagrahi should always be truthful and peaceful and refuse to accept what was unjust and unfair. जो सत्याग्रही होता है वो हमेशा सच्चा और शांत होता है. सेकेंड नंबर इज व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट क्या था? Rowlatt Act is an act passed by the British government in 1919, which gave it the power to imprison any person without trial in a court of law. Rowlatt Act क्या था? एक तरह का ऐसा एक्ट था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में 1919 में पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, विच गेव, जिसमें उनको ये पावर मिली थी टू इम्प्रिजन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को जेल में डाला जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल इन कोर्ट ऑफ लॉ, अगर उसकी गलती किसी कोर्ट में लॉ के अकॉर्डिंग अगर उनको बिना ट्रायल के किसी भी पर्सन को रॉलेट एक्ट के दौरान जेल में डाला जा सकता है. दैट इज the Rowlatt Act. Rowlatt Act is an act passed by the British government in 1919, which gave it the power to imprison any person without trial in a court of law. Here, third question is, what did Mahatma Gandhi suspend the non-cooperation मूवमेंट? महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म क्यों किया? Why did Mahatma Gandhi suspend the non-cooperation movement? Mahatma Gandhi suspended the non-cooperation movement because on 5th February 1922, क्योंकि 5th February 1922 को क्या हुआ था? Some people set ablaze, कुछ लोगों ने क्या किया था? ablaze a police station at चौरा चौरी in उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के यूपी के चौरा चौरी में एक पुलिस चौकी को ablaze मीन से जला दिया था. As a result, 22 policemen died. तो उस घटना के दौरान क्या हुआ था? 22 पुलिसमैन की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी. So महात्मा गांधी took responsibility for this violence. तो उस समय महात्मा गांधी ने जो ये वायलेंट हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद ने ली थी. हालांकि वो जो अहिंसा के विरोधी थे, वो चाहते थे, वो अहिंसा को सपोर्ट करते थे. वो कहते थे हमेशा जो सत्याग्रही होता है वो पीसफुल होता है और वो नॉन वायलेंस को वो कहते थे. फिर भी जब ये वायलेंट हुआ तो उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली एंड कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मतलब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया. क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट द गोल ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके गोल मतलब लक्ष्य क्या क्या थे? द गोल्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज, अब क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके गोल्स क्या क्या थे? टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव करना.
It took place in 1942 to force the British to leave India so that it could be become free. अब 1942 में जब 1942 में ब्रिटिश को फोर्स किया ताकि वो क्या है इंडिया को छोड़े। उन्होंने इंडिया को छोड़ने के लिए मजबूर किया ब्रिटिश लोगों ने, क्योंकि वो उनकी यूनिटी बन गई थी। आपस में उनको यही चीज समझ में आई कि यूनिटी से सारे काम हो सकते हैं, तो उन्होंने फोर्स किया ब्रिटिश लोगों को कि वो इंडिया को लीव करे सो दैट इट वुड बिकम फ्री, ताकि वो क्या है उनकी जो कंट्री है, कंट्री के लोग हैं, वो क्या है फ्री फील करें, इंडिपेंडेंट फील करें। These are the goals of the Quit India movement. Here we completed our lesson number 15, part 2.